IMF نے شکنجا کس لیا 20 دن میں پیٹرول تیسری بار مہنگا 1 لیٹر پیٹرول 24 روپے اضافے کے بعد 233 روپے 89 پیسے کا ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے کا ریکارڈ اضافہ 263 روپے لیٹر ہو گیا پیٹرول مہنگا ہونے پر لاہوریے حکومت کے خلاف پھٹ پڑے دن بدن غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائے ایک مزدور آدمی جس نے بیچارے نے سائیکل سے بائک پہ آیا وہ کتنا پیٹرول فوڑ کرے گا ڈیلی کا جس کا چلنی ہو 50 کلومیٹر اب اس کو ڈیلی کا 250 کا تیل لگے اور وہ کرے گا کیا گھر کیا دے گا اور خود کیا کرے گا ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیے لاہور سے بھکر کے کرائے میں 200 روپے اضافہ نارووال سیالکوٹ کا کرایہ 100 روپے بڑھ گیا فیصل آباد جانے والے مسافر بھی جیب میں اضافی پیسے رکھیں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا گزارش ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں یہ پرائسز واپس کریں اور ہم اپنے کرایوں کو ریورس کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے یہ جو مہنگائی کا طوفان اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور اس سے عوام دن بدن پستی کی طرف جاتی جا رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مزدور کسان پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزدوروں کسانوں اور رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی مزدور کسان پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری کامریڈ عرفان کی قیادت میں دبئی چوک رائیون روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک مزدوروں کسانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دیا دہاڑی دار طبقے نے کہا کہ حالیہ اضافہ فاقوں کا باعث بنے گا غریب عوام تے پہلے ہی پیسی ہوئی ہے لیکن انہوں نے مزید بوجھ پا کے میرا خیال غریب آدمی ہے جڑا وہ روٹی کھان جو کا بھی نہیں رہنا آنے والے دنوں غریب مرن گے خودکشیاں کرن گے یہ ڈائریکٹ اثر عوام تے ہی پی رہا ہے حکومت دے کان تے کوئی جو نہیں رینگدی پئی ہمارا کسان پہلے مر چکا ہے جو کسان ڈیزل پہ انجن چلاتا ہے ٹیوب ویل چلاتا ہے وہ کہاں جائے گا اتنی مہنگی پیداواری جو اخراجات ہیں کیسے افورڈ کریں گے ایک طرف ہمارے حکمران ہماری گندم اور اناج کو ایکسپورٹ کر کے 2 نمبری سے منافع کماتے ہیں پھر امپورٹ کر کے منافع کماتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی دہاڑی داروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں 3 گنا تک اضافہ ہو چکا مگر ہماری اجرت وہی کی وہی ہے مزدوروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی ختم کی جائے مزدوروں کے لیے فوری ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے 3 سال تھی گئے 3 سال 1000 روپیہ ریٹ چلتا پہ مزدوری دا کیونکہ گھیو 700 روپے کلو ڈالٹا تھی گئے مہنگائی عروج تے پہ گئے دال کے 100 روپے کلو ملتی آج سب کم از کم 250 روپے کلو سارے علاقے دے ملتی پی ہے انسانیت نہیں رہ گی پیٹرول اتنی مہنگا تھی گئے کئی رکشے والا فرق کی پیٹرول 5 روپے پر پیٹرول دے ودے اتنا انہیں 5 روپے ودا لیندن انسانیت ہے کہنا جس طرح مہنگائی جس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے 235 میں پیٹرول چڑھا گیا ڈیزل بھی چڑھ گیا ساری چیزیں جو گھی ہے آٹا ہے چینی ہے ساری چیزیں مہنگے سے مہنگے ہوتی چلی گئی ہے مزدوری کی اجرت ہے ماہانہ ڈیلی اجرت وہ بھی بڑھائی جائے مزدوروں کا ڈیلی اجرت 1500 جو 1000 چل رہا ہے اس کو 1500 پہ کیا جائے اس طرح مستری کا مزدور کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو انتہائی پریشان کر دیا ہے تاہم دہاڑی دار مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ رمید الیاس سٹی 42 پیٹرول کے بعد بجلی بھی مزید مہنگی نیپرا نے بجلی 1 روپے 55 پیسے مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق جولائی سے ہوگا بجلی کی قیمت میں اضافہ 3 ماہ کے لیے 10 تقسیم کار کمپنیوں پر لاگو ہوگا پیٹرول کے بعد بجلی بھی مزید مہنگی کر دی گئی نیپرا نے بجلی 1 روپے 55 پیسے مزید مہنگی کرنے کی منظوری دی بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں میں 5 روپے فی یونٹ کے حساب سے ملنے والا ریلیف ختم کر دیا سابقہ دور حکومت میں وزیر اعظم ریلیف پیکج کے نام سے صارفین کو سبسڈی دی گئی تھی مہنگائی کی وجہ سے سابق حکومت نے بجلی کے صارفین کو 5 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا تاکہ چھوٹے گھریلو اور کمرشل صارفین کو ریلیف دیا جا سکے تاہم موجودہ حکومت کی ہدایت پر پاور ڈویژن کے احکامات کی روشنی میں ریلیف ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے رواں ماہ سے بجلی کے بلوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا
IMF की आशिर बाद डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा, कीमत 207 रुपये 67 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपये का फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 207 रुपए की हद भी अबूर कर गया। बैंकारी औकात के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का रेट 207 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता 5 रोज से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रवां कारोबारी हफ्ते में डॉलर 5 रुपए 32 पैसे तक महंगा हो चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF मामला हतमी तौर पर तय न होने में ताखीर के सबब रुपए की कदर कम हो रही है। ज़र-ए-मुबादला के नाकाफी ज़खायर डॉलर की तलब के मुकाबले में कम हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक रुपए पर मजीद दबाव का खदशा मौजूद है। सराफा बाजारों में कारोबारी सरगर्मियों के इख्तिताम पर सोना 2500 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,45,700 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,33,558 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,27,487 रुपए रहे। कर्जों में तेजी से इजाफा। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब का मकरूज। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज भी तेजी से चढ़ने लगा। किस्त में सालाना 6 अरब रुपए का इजाफा। किस्त 19 अरब से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त का तखमीना 19 अरब रुपए था। किस्त में मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ऑरेंज ट्रेन के सालाना 25 अरब रुपए की किस्त से सूबे के लिए दीगर कर्जों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। कर्ज की वापसी की मुद्दत भी 2050 से आगे जा चुकी है। मुआशी सूरत हाल के बायस कर्जों की वापसी बेयकीनी और मुश्किलात का शिकार है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन पेश हों। नैब ने करप्शन इल्जामात पर साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक बार फिर तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नैब साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ वापडा में 753 मिलियन डॉलर्स की करप्शन इल्जामात की तहकीक कर रहा है। मुजम्मिल हुसैन को 20 जून को दोबारा नैब ऑफिस तलब किया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन 6 जून वाले नोटिस पर नैब के सामने पेश नहीं हुए थे। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन पर त्रिबेला 4 प्रोजेक्ट के दौरान सुस्त रवि के साथ साथ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मनपसंद ठेकेदारों को अरबों रुपए की अदायगी करने का इल्जाम आयद किया गया है। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में FIA में पेश हुए। मोनस इलाही 4 घंटे में भी FIA तफ्तीशी टीम को मुतमईन ना कर सके। मोनस इलाही ने बयान दिया कि मैं किसी किस्म के माली फ्रॉड में मुलव्विस नहीं। मुकदमे का मीडिया रिपोर्ट से पता चला तमाम असासाजात टैक्स रिटर्न्स में वाज़े हैं। रहीम यार खान शुगर मिल्स के तमाम शेयर्स कानून के मुताबिक खरीदे। मजहर अब्बास और मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता। FIA ने मोनस इलाही को 23 जून तक जवाबात देने के अहकामात दे दिए। FIA की जानिब से काफ लीगी रहनुमा मोनस इलाही को 33 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। सिटी 42 ने FIA का तफसीली सवालनामा और मोनस इलाही के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। FIA की जानिब से मोनस इलाही से सवाल पूछा गया कि मुकदमे में नामजद मजहर अब्बास और नवाज भट्टी को जानते हैं? सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मोहम्मद खान भट्टी का नवाज भट्टी और मजहर अब्बास से क्या ताल्लुक है? मोनस इलाही ने तहरीरी बयान दिया कि नैब तमाम असासाजात की पहले ही इंक्वायरी कर चुका, मजहर अब्बास और नवाज भट्टी को नहीं जानता। FIA जराये के मुताबिक मोनस इलाही को 23 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है। तहरीरी जवाबात दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मोनस इलाही की FIA ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज नून लीग को कह दूं कि आपका साथ देंगे तो सब मुकदमात खत्म हो जाएंगे। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जिला कचहरी में हुई। FIA ने 2 मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था। वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के वकील से कानूनी नुकात पर मुआवनत मांग ली कि क्या अदालत सदर का इख्तियार अपनाते हुए किसी और को हल्फ लेने के लिए मुकर्रर कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही समेत दीगर की अपीलों की समाअत की। बेंच ने समाअत के दौरान वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान को बावर कराया कि मौसम गर्मा की तातील से पहले अपीलों पर कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। बेंच के इस तफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि मुख्तलिफ अफराद ने गवर्नर को मशवरा दिया। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि एक खत से बज़ाहिर बहरान शुरू हुआ। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने बताया कि उन्होंने गैर मामूली सूरत हाल में गवर्नर
गवर्नर को मशवरा दिया और आईनी पोजीशन बताई। पीटीआई वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। हमजा शहबाज के वकील के मुताबिक गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर गवर्नर की राय में ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तब वो हल्फ लेंगे और फिर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि अगर आइन में लिखा होता कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद था। उस पर पीटीआई वकील ने कहा कि तो फिर गवर्नर का इख्तियार क्या है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील के दलाइल में तहरीक इंसाफ के वकील के बोलने का नोटिस लिया और रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है, इस तरह बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये अदालत चल रही है, कोई मजाक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील से मुआवनत मांगते हुए कहा, क्या अदालत किसी और को हल्फ के लिए कह सकती है। अपीलों की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। लैंड एक्विजिशन में ताखीर के बायस शेरांवाला फ्लाईओवर मुकम्मल ना हो सका। एलडीए ने डेडलाइन में 30 जून तक तौसी कर दी। पीटीआई दौर में शुरू होने वाला मंसूबा शेरांवाला गेट फ्लाईओवर ताहीर का शिकार हो गया था, जिसकी डेडलाइन में अब 30 जून तक तोसी कर दी गई है। एलडीए का मेगा प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन में ताहीर के बायस बर वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। शेरांवाला मंसूबा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मार्च में मुकम्मल होना था। लैंड एक्विजिशन मसाइल के बायस मंसूबा 3 माह की ताहीर का शिकार हो गया। एलडीए के चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान ने तोसी देने का लेटर जारी कर दिया है। शहर की शाहराहों पर सफ़र महफूज और मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 450 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अगले माली साल में मंसूबे की तकमील के लिए लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी शहर की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मजीद कैमरों की तनसीब करेगी। मुख्तलिफ इलाकों में 450 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। नए कैमरों की तनसीब के लिए डीओसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। नए कैमरे दूर दराज के इलाकों में हाउसिंग स्कीमों के गिरदनवाह में नस्ब किए जाएंगे। अगले माली साल में 30 करोड़ से कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल किया जाएगा। कबल अजीम शहर में 8000 के करीब कैमरे सिक्योरिटी के लिए नस्ब हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 11 अरब के तरक्याती मंसूबों के PC1 तैयार करने की हिदायत कर दी। आइंदा माली साल में शामिल नए तरक्याती मंसूबों के PC1 20 जून तक मांगे गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत की है कि आइंदा हमारे साल में शामिल मंसूबों के PC1 फौरी जमा करवाए जाएं। नर्सिंग यूनिवर्सिटी PKLI का 3.5 अरब के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। म्यूं अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के लिए नए आलात की खरीदारी का 34.5 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। सर्विसेज अस्पताल का HMIS न्यूरो इंटरवेंशनल स्वीट का 40 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। PIC के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का 40 करोड़ के मंसूबे, 2 पुरानी एंजियोग्राफी मशीनों की तब्दीली के लिए 39 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। चिल्ड्रन अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तब्दीली का 67.5 करोड़ के मंसूबे का PC1 मांगा गया है। हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों में MRI, CT स्कैन और मेमोग्राफी आउटसोर्स करने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में खती रकम मुख्तस कर दी गई। टीचिंग अस्पतालों में MRI, CT स्कैन और मेमोग्राफी सर्विसेज को आउटसोर्स करने पर 2 अरब 40 करोड़ रुपए मजमूई लागत आएगी। आइंदा माली साल के दौरान MRI, CT स्कैन और मेमोग्राफी सर्विसेज के लिए 10-10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रेडियोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट फर्म को आउटसोर्स की जाएंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में मशीनों को आउटसोर्स करने का अमल बहाल कर दिया है। अस्पतालों में MRI सर्विसेज के लिए 70 करोड़, CT स्कैन 30 करोड़ और मेमोग्राफी के लिए 20 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर 755 घंटे सफ़र किया। उस्मान बुज़दार का जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर सफ़र कौम को 44 करोड़ 81 लाख 61 हज़ार रुपये में पड़ा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे इक़्तिदार में हेलीकॉप्टर और जहाज का खूब इस्तेमाल किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर जहाज और हेलीकॉप्टर में 5,10,265 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल की मद में मजमूई अखराजात 6 करोड़ 48 लाख 63,126 रुपए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने जहाज पर 420 बार सफ़र किया और हेलीकॉप्टर पर 321 बार सफ़र किया, जिस पर 16 करोड़ 38 लाख रुपए के अखराजात आए। उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 755 घंटे फिजा में रहे। फी घंटा के हिसाब से उस्मान बुज़दार के फिजाई सफर पर 5,93,591 रुपए खर्च हुए। इन मजमूई अखराजात में मेंटेनेंस, लैंडिंग, पार्किंग फीस, HR और दीगर अखराजात शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2021-22 में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उस्मान बुज़दार ने जहाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बेशतर स्कूलों का तालीमी बोर्ड से इल्हाक ना होने का इंकशाफ हुआ। PEF ने पार्टनर स्कूलों को मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से इल्हाक करने की हिदायत जारी कर दी।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बेशतर स्कूलों का तालीमी बोर्ड से अलहाक न होने का इंकशाफ पैफ ने अपने एक मरासले में किया है। मरासले में तमाम पैफ पार्टनर्स स्कूलों को मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से अलहाक करने और मौजूदा साल में अलहाक करवा कर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। मरासले के मुताबिक नहम दहम जमात के तालिब इल्मों की बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत लाजमी करार दी गई है। गैर अलहाक शुदा स्कूल दीगर अलहाक शुदा पैफ स्कूलों के जरिए दाखिले भेज सकते हैं। FBR ने एयरलिफ्ट ग्रॉसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। FBR ने इनकम टैक्सेस की मद में 3.5 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर एयरलिफ्ट ग्रॉसर के अकाउंट्स मुंजमद किए। कमिश्नर इन्फोर्समेंट विन तकी कुरैशी की हिदायत पर कार्रवाई की गई। एडिशनल कमिश्नर कहकशाहान, डिप्टी कमिश्नर अहमद मुश्तबा, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इमरान जैदी, इंस्पेक्टर हुसैन शाह, बाबर नईम रिकवरी टीम में शामिल थे। DHA फेज 3 में वाक़ MCB ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की गई। सरगोदा में मुअत्तल किए गए 5 डॉक्टर्स को बहाल कर दिया गया। YDA ने 4 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा अस्पताल के दौरे के दौरान अवामी शिकायत पर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया था। वज़ीर आला के फैसले के बाद यंग डॉक्टर्स ने शहर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 4 रोज तक बंद करके शदीद एहतजाज किया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पोलियो हेल्थ वर्कर्स का DG हेल्थ के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा किया। नौकरियों से निकाले गए महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स ने कॉपर रोड पर वाक़िया DG हेल्थ के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमा सेहत ने जबरी तौर पर नौकरियों से फारिग किया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन पौने 2 साल बाद फारिग कर दिया गया। लाहौर से 700 वर्कर्स को नौकरियों से फारिग किया गया। गुज़िश्ता 6 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गयी। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि मुतल्लिका हुकाम मुतालबात सुनने को भी तैयार नहीं है। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन तनवीर अहमद शेख की क़यादत में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। वफ्द ने गवर्नर से फिरोजपुर रोड सनती जोन में टूटी फूटी सड़कों की तामीर और बिजली की ट्रिपिंग ख़त्म कराने और वासा वाटर टैरिफ यकसा कराने का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफ्द से मुलाकात करने वालों में फाउंडर चेयरमैन फराया अदनान भट्ट, अरशद बेग, शाहिद बेग, शफीक भट्ट, खालिद भट्ट समेत दीगर सनतकार मौजूद थे। चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख ने कहा कि फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल जोन में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सफाई और मानसून के हवाले से इजलास हुआ। CEO LWMC, COMCL समेत मुतालिका ACs और अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर की मानसून के हवाले से कल से सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सफाई और मानसून के हवाले से इजलास हुआ। CEO LWMC, COMCL समेत मुतालिका ACs और अफसरान ने शिरकत की। IG पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रैफिक पुलिस में प्रमोशन और कौमी रजाकारों की सरगर्मियों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक वार्डन्स की 295 खाली सीटों पर महकमाना तरक्कियों के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया। ट्रैफिक पुलिस के दीगर मामलात बारे कमेटी 14 दिन के अंदर सिफारिशात मुरतब करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में करेक्टर सर्टिफिकेट में जराइम की कैटेगरी, अपील का हक और दीगर तफसील की शमूलियत का तफसीली जायज़ा लिया गया। मॉडल टाउन और कैंट डिवीज़न के SPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी मुतासिर कुन न रही। CCPO ने कारकर्दगी बेहतर ना करने पर आइंदा सज़ाएँ देने और किसी सज़ा याफ्ता को पोस्टिंग ना मिलने की वार्निंग दे दी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CCPO ने मॉडल टाउन कैंट डिवीज़न में क्राइम कंट्रोल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस ने मॉडल टाउन और कैंट डिवीज़न के SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी पर सरजनिश भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की 32वीं सालगिरह सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने केक काटा। सदर UMT का कहना था कि UMT मुल्क का टॉप रिसर्चर इदारा है जो मुल्की मसाइल के हल के लिए कोशां है।
یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی 32ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی صدر UMT ابراہیم حسن مراد تھے۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل UMT عابد شیروانی، ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا، چیف ایڈوائزر ٹو صدر UMT آن ریسرچ اینڈ ایکڈیمکس ایکسیلنس ڈاکٹر مجاہد کامران، ڈائریکٹر اسپیشل پروجیکٹس UMT زاہد وڑائچ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ UMT کا زیادہ فوکس ریسرچ پر ہے۔ یونیورسٹی کو 2030 تک دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک بنائیں گے۔ یونیورسٹی کا جو فوکس ہے وہ ہے یہ کہ ہم ایسی ریسرچ پروڈیوس کریں جس سے ملکی مسائل سالو ہوں، تو ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ سوشل امپیکٹ پہ ہے، وہ علم نافع پہ ہے، وہ ہم علم دیں جس سے لوگ اپنی زندگی بہتر کر سکیں، وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ DG UMT عابد شیروانی کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی ایشیا کی بہترین 500 یونیورسٹیوں میں شامل ہے، جس نے اب تک 21,000 اسٹوڈنٹس کو 7 ارب 20 کروڑ کے اسکالرشپس فراہم کیے۔ ہم نے اسکالرشپ دی ہیں ایسے بچوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ہم نے ان کی اس کے علم کی راہ میں ان کو حائل نہیں ہونے دیا کہ ان کے کسی قسم کی بھی جو معاملات تھے، مشکلات تھیں، الحمدللہ ہمارے بورڈ نے، ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے ان کو یہ پرووائڈ کیا، اور دے آر ورکنگ اراؤنڈ دا گلوب۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ہماری۔ تقریب کے اختتام پر صدر UMT ابراہیم حسن مراد نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ کیک کاٹا اور تمام سٹاف جو 32 سال سے UMT کے سفر میں شریک ہیں ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔